Hello students, this is Professor Vivek Tiwari from Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. Today we are discuss on the topic constructor and destructor, which is of unit 3 of programming in C++ of BSc second year information technology. Okay, so let's see what we will learn today. That is constructor definition, how to define a constructor, how to declare a constructor, what are the characteristics of the constructor, what is default constructor, how it is defined, what is parameterized constructor. Then we will learn about the copy constructor, then constructor with default argument, and how to initialize dynamically the constructors. And at last end of this video we will learn about the destructors, how it is defined and how it is declared and why it is used. So let's start the constructor. So first of all, the question is why we use constructor. The answer of this question is, let's take a look on this program that I have written. I have declared one class student which have the two private members, roll number of integer type and name of character types. I have declared two different functions here, get data and put data. Obviously get data function is used to accept input for roll number and the name, and put data function is defined to print the value of roll number and name. I have just declared that function, I did not define it, but for to understand, let's suppose it is defined, and get data is defined to accept input from the keyboard for object of student, and put data is used to display the student's member on the screen. And inside the main I have created one object obj1 and calling these two functions via this object. So what this function will do, this function will provide initial values of roll number and name. So to provide initial value of this roll number and name, we have to explicitly call the functions. Here I am calling get data function to provide initial value of roll number and name. So let's try to remember again the basic concept of object-oriented programming. Object-oriented programming, I have created a class and told that it is very similar like built-in type. Class is a type we all know very well. Class is a type like other types, integer and the float. To use the ordinary variable, we have to create a variable of that type. Here I am declaring one. Okay. Here I am declaring one integer variable of type integer x is equal to 5 and float variable of type pi is equal to 3.14. These are ordinary variable, and I have created one class student and created object of that class student obj. Here I am created object of that class student obj. So when object-oriented programming system came into existence, they have told us that the user-defined type class is very similar like ordinary variable. But here I am looking at the variable declaration of ordinary variable. Here I have initialized by providing some initial value of x directly at the time of declaration. I am providing initial value of float variable pi at the time of its declaration, but this is not possible in till now in the case of class. So how to initialize ordinary variable, how to initialize a class variable like ordinary variable, that is the question. जैसे कि हमने देखा कि ऑर्डिनरी वेरिएबल को हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्लास वेरिएबल को डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कैसे इनिशियलाइज करें, यह प्राइमरी क्वेश्चन है और इसका आंसर है कंस्ट्रक्टर. मतलब हम कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए. ओके, so basically constructor is a special member function whose task is to initialize the object of class. That means constructor is a function of class, member function of class, and the basic task of the constructor is to initialize the object of class. The second most important property of the constructor is that the name of the constructor is the same as name of the class.
It is invoked automatically when object of its associated class is created. No need to explicit call constructor. Whenever the class of the object is created, automatically associated constructor will be called. It is so called because it is construct the values of data member of class. So let's see how to define and declare a constructor. Okay, we will try to learn this concept using this program. Here you have to define the header file has include iostream.h, has include conio.h. I have created one class ABC and declared two private member here. You have to declare two private member, integer A and integer B. Inside the public section, I have declared the constructor here. Let's see how it is declared. The name of the constructor is same as the name of class. Here the name of the class is ABC and I am declaring the constructor, its name is also ABC. Then I have closed the class and I am defining the constructor. How to define a constructor is same as the how to define a function. There are two ways to define a function. The first one is inside the class and another one is outside the class. Same you can use the same way to define constructor also. You can define the constructor inside the class also, and you can define the constructor outside the class also. In this program, I have declared the constructor inside the class and defining that constructor outside the class. For that purpose, I am using a scope resolution operator here. So first ABC is a class name, then the scope resolution operator, then second ABC is a name of constructor. Then what I am doing, I am providing initial value. I am providing the value of A as 0, value of B as 0, and I am writing one line of code, then that is constructor called. Then I am writing one line of code, that is constructor called. That means whenever the constructor called, this code will be executed. Then inside the main, I have written only one statement. That means I am creating object of class. So what would happen when this line of code will execute? When this line of the code is executed, when we have created the object, automatically this constructor will be called. This constructor will be called automatically when we execute this line of code. Okay, let's see what is the output. The output is constructor called, and this is a memory representation. This is a memory representation of object. Here object will be created with two private member A and B, and the initial value of A and B is 0. That is initialized by constructor. So in this line we have write constructor call. This is to बेसिकली ये इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी प्रोग्रामर है उनको पता चल जाए कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है. जैसे आप इस लाइन ऑफ कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और लेकिन मेमोरी के अंदर एक स्पेस क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था क्लास एबीसी के लिए, और उसमें दो प्राइवेट मेंबर होंगे ए और बी, और वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से. तो ये इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं. Okay, so what is default constructor? The next topic that we have to understand is what is default constructor. It's very simple. A constructor that accepts no parameter is called default constructor. ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर जो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. हमने पिछले एग्जांपल में क्लास डिफाइन किया था एबीसी, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था एबीसी. फिर से पुराने प्रोग्राम को देखें. इस प्रोग्राम में देखिए, इस प्रोग्राम में यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है. इस कंस्ट्रक्टर पे कोई भी हमने यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया है. जब हम कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं देते हैं उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होगा? स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन स्टूडेंट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अगर मान लीजिए इफ नो सच कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द क्लास, देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. अगर
अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे पहले, इससे पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया था। तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता है, क्रिएट करता है, ताकि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सके। पर अगर हमको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना है तो मतलब हमको कोई ना कोई वैल्यू वहां पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमको समझ में है, ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर जो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। So next take a look on constructor characteristics. What are the basic characteristics of constructor? The first characteristic should be declared in public section. Constructor always be declared inside the public section. The name of the class and the name of the constructor is same. In the last example, we have created a class, defined a class with name ABC, and the name of the constructor is also ABC. It will be invoked automatically when the object is created. No need to call explicitly. जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी इनहेरिटेड, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जैसे फंक्शन डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ हो सकते हैं, उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट रिफर टू देयर एड्रेस, कंस्ट्रक्टर खुद के एड्रेस को रेफर नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट विथ कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज्ड एज अ मेंबर ऑफ यूनियन, कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को यूनियन मेंबर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द कंस्ट्रक्टर, बेसिक कंस्ट्रक्टर characteristics. Now let's take a look on the another very important concept, that is parameterized constructor. First constructor that we have learned is default constructor, that means constructor without any parameter is default constructor. Now parameterized constructor, that means we will provide some parameters to constructor. Let's take a look on this example. You have to define the header files iostream.h and conio.h. Then declare, I am declaring one class name is ABC, then inside the private section I have declared two integer variable a and b. Inside the public section I have declared one function, display function, that will print the value of a and b on the screen. Display function will print value of a and b on the screen. Then I have declared one function. Look at this example. Look at this one, ABC, integer x and integer y. I have declared one constructor. The name of the constructor is same here. Here I am using the name ABC. Here I am using the name ABC. And I am provided two parameters for that, integer x and integer y. It's a same like function that we have learned in function. जैसे कि हम फंक्शन में पैरामीटर प्रोवाइड करते थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दो पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक इंटीजर टाइप का x, दूसरा इंटीजर टाइप का y। उसके बाद क्लास बंद हो जाता है। आप कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं, बाहर क्लास के बाहर में डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए वो एरिया ब्लैंक है। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है क्लास का नाम ABC है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ABC, देन वी हैव टू प्रोवाइड पैरामीटर. What I am doing in this line of code, I am providing the value of x, I am copying the value of x into the class member A, and I am providing I am copying the value of the second parameter y into class variable B. That's it. There is a simple line of code that I am writing. Parameterized constructor यहाँ पे दो इनपुट ले रहा है x और y, और उस x और y की वैल्यू को a और b में कॉपी कर रहा है. That's it. ओके, अब हम आते हैं मेन फंक्शन पे. मेन फंक्शन में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ABC टाइप ऑब्जेक्ट. जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC टाइप ऑब्जेक्ट, ये वर्क नहीं करेगा. व्हाई इट विल नॉट वर्क? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये कभी भी काम नहीं करेगा. दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है. अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो ये एग्जीक्यूट करता, क्योंकि उस समय कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता. पर यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा. अब कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है इम्प्लिसिट कॉलिंग, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कॉलिंग. लेट्स सी ये कैसे होता है. सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट कॉलिंग.
जैसा कि हम पहले भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आए हैं, ABC क्लास का नाम, उसके बाद हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट का नाम object1, आई एम प्रोवाइडिंग 2 वैल्यू। जैसा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने देखा कि वो 2 पैरामीटर लेता है, 2 इंटीजर वैल्यू लेता है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड किया है ABC object1 10 20। फिर मैंने डिस्प्ले कराने की कोशिश की है object1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। ये हो गया पहला मेथड ऑफ calling of constructor, the first method of calling of constructor, that is called implicit calling. And the second method is that explicit calling. In explicit calling, I am using abc dot object 2, I am using dot operator here is equal to abc 30 40. That is the second way of calling. I am using object 2 dot डिस्प्ले। मतलब मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं कि पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इम्प्लिसिट कॉलिंग से, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक्सप्लिसिट कॉलिंग से। ये सिंटेक्स होता है, इसको आपको याद रखना है कि किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे किया जाए। पहले हम सिर्फ वेरिएबल का नाम मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता था। अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो हमको पैरामीटर को पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर 2 इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंटीजर वैल्यू 10 और 20 पास किए ऑब्जेक्ट 1 में, और ऑब्जेक्ट 2 में 30 और 40 पास किए। अब देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले पहला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको आपको कमेंट बनाना है, इसको आप कमेंट बना लीजिएगा। इस लाइन को आपको कमेंट बनाना है। उसके बाद हम कॉल करते हैं ABC object1 10 20। जैसे ही इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये 10 स्टोर होगा X में, 20 स्टोर होगा Y में, और A में स्टोर हो जाएगा 10 और B में स्टोर हो जाएगा 20, क्योंकि हमने लिखा है A इज इक्वल टू X और B इज इक्वल टू Y। और जब सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट 2 तो A में स्टोर हो जाएगा 30, B में स्टोर हो जाएगा 40। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आने वाला है। देखते हैं आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट 1 में A की वैल्यू 10 है और ऑब्जेक्ट 1 में B की वैल्यू 20 है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट 2 में A की वैल्यू 30 है और B की वैल्यू 40 है, जैसा कि हमने प्रोवाइड किया था। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया था, कोई पैरामीटर नहीं दिया था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमको पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं, हमको प्रोवाइड करना होता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में 2 तरीके हैं, या तो इम्प्लिसिट कॉलिंग से आप यूज कर सकते हो, दूसरा एक्सप्लिसिट कॉलिंग से भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें, मैंने एक क्लास क्रिएट किया है। लेफ्ट साइड में देखिए क्लास ABC। उसके बाद जो भी आपको डिफाइन करना है डिफाइन किए। पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है ABC, और उसमें मैं पास कर रहा हूं ABC को ही, इस ABC ऑब्जेक्ट को ही मैं पास कर रहा हूं। ये C++ में पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीटली इलीगल है। मतलब द पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन एनी टाइप एक्सेप्ट द क्लास इटसेल्फ टू विच इट बिलोंग्स। मतलब कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं एक्सेप्ट द क्लास इटसेल्फ टू विच इट बिलोंग्स। जिस क्लास को भी बिलोंग करता है उसको छोड़ के हम कोई भी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को पास कर सकते हैं। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए, हम ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर क्लास के खुद के ऑब्जेक्ट को हम उसमें पास नहीं कर सकते, परंतु हम उसका रेफरेंस पास कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए यहाँ पे हम उसका रेफरेंस पास कर रहे हैं। राइट साइड में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है ABC, और ABC टाइप का उसमें मैंने रेफरेंस यहाँ पे ABC टाइप का रेफरेंस पास किया है। तो यहाँ ABC टाइप का रेफरेंस पास किया है। तो कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेप्ट रेफरेंस ऑफ इट्स ओन क्लास। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर अपने खुद के क्लास का रेफरेंस एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन खुद के क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये जो केस 2 है जिसमें कंस्ट्रक्टर अपने क्लास का ही रेफरेंस को एक्सेप्ट करता है, इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले केस 1 में देखिए, केस 1 में क्लास मैंने डिफाइन किया है ABC टाइप का क्लास डिफाइन किया है। पब्लिक सेक्शन में उस कंस्ट्रक्टर ABC टाइप का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम देखते हैं जिसमें मैंने ABC को क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब C++ का कॉन्सेप्ट कहता है कि कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर कोई भी हो सकता है, उसके खुद के क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। परंतु इसके विपरीत
कोई भी हो सकता है, मतलब हम उसका रेफरेंस पास कर सकते हैं। केस 2 में देखिए मैंने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है एबीसी, उसमें एबीसी टाइप का मैंने रेफरेंस पास किया है। तो जब भी आपके प्रोग्राम में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर आए जिसमें खुद उसी के क्लास का रेफरेंस हो, तो उस कंस्ट्रक्टर को बोला जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम एक्सप्लिसिटली नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कैसे बनाएं, उसको कैसे यूज करें, उसको किस तरीके से कॉल करें। अब इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले लाइन ऑफ कोड में मैंने लिखा है हेडर फाइल। ये हेडर फाइल है iostream.h conio.h। फिर मैंने क्लास डिफाइन किया है एबीसी। आप कोई भी क्लास नेम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा नहीं, पर बाय डिफॉल्ट ये जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है। यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये प्राइवेट हैं। पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है एबीसी टाइप का, उसके डिफिनेशन को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है और इसमें पैरामीटर ब्लैंक है। इसका मतलब सीधा सा है कि जो कंस्ट्रक्टर 1 है वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने जो कंस्ट्रक्टर 2 डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर 2 में देखिए ये दो पैरामीटर ले रहा है, इंटीजर x और इंटीजर y। इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टर 2 है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। x की वैल्यू को हम a में स्टोर कर रहे हैं, y की वैल्यू को हम b में स्टोर कर रहे हैं। और तीसरा कंस्ट्रक्टर देखिए, तीसरा कंस्ट्रक्टर जो मैंने यहाँ पे लिया है abc, उस पे abc टाइप का रेफरेंस p पास किया है। abc टाइप का रेफरेंस p पास किया है। रेफरेंस p एक रेफरेंस वेरिएबल है, किस टाइप का, abc टाइप का। abc क्या है, abc क्लास है, मतलब हम उसी के कंस्ट्रक्टर में उसी का एक रेफरेंस पास कर रहे हैं, इसलिए इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब मैंने क्या किया है, वैल्यू a में p के a को स्टोर किया है, वैल्यू b में p के b को स्टोर किया है। मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं एक कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करने के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन का काम बिल्कुल आसान है, जो क्लास के जो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करना। जब भी हमको देखना रहेगा प्रोग्राम के आउटपुट को चेक करने के लिए, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम आते हैं मेन में। मेन फंक्शन पे मैंने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया abc ऑब्जेक्ट 1 10 20। तो ऑब्जेक्ट 1 कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर 2 कॉल होगा और ऑब्जेक्ट 1 में a की वैल्यू 10 हो जाएगी और ऑब्जेक्ट 1 में b की वैल्यू 20 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड देखिए abc ऑब्जेक्ट 2, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑब्जेक्ट 1। ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है abc ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1, ये वाले लाइन ऑफ कोड को अब ध्यान से देखिए। एबीसी टाइप, एबीसी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट 2 नया ऑब्जेक्ट है और उसमें ब्रैकेट में मैंने पास किया है ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस। यहाँ पे मैंने पास किया है ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस। इसका मतलब साफ है कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 में जो ए और बी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 2 की ए और बी में स्टोर हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट 2 में ए की वैल्यू भी 10 होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट 2 में बी की वैल्यू 20 होनी चाहिए। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ कोड देखिए एबीसी ऑब्जेक्ट 3 लिखा है इज इक्वल टू मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट 1। ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो मेथडोलॉजी बताई कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। पहला, हम डायरेक्टली एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट 2 फिर ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट 1 लिख सकते हैं। दूसरा, एबीसी ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले क्या प्रिंट करना चाहिए, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20। ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर से कॉल हुआ है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 आनी चाहिए। फिर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प्ले, यहाँ भी ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। लेट्स सी। यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट, इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 का मेमोरी में ए का वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट 2 जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुआ है उसमें भी ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट 3 जिसमें ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो ये हो गया बेसिकली एक प्रोग्राम कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। इस प्रोग्राम से मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से फंक्शन के डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं उसी प्रकार कंस्ट्रक्टर के भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो लेट्स सी दिस प्रोग्राम
ओके, यहाँ पे देखिए हेडर फाइल डिफाइन है, मैंने क्लास यहाँ पे लिया है एसआई, एसआई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ मैंने शॉर्ट में ले लिया एसआई। मैं दो वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर वेरिएबल पी, इंटीजर वेरिएबल टी। फिर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ फ्लोट आर और फ्लोट एसआई। फिर पब्लिक सेक्शन में मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ एसआई। इस कंस्ट्रक्टर में एक्स वाई और जेड तीन पैरामीटर मैं पास करूंगा, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू एक्स का मैंने दे दिया है 1000, डिफॉल्ट वैल्यू वाई का दे दिया है 5 और डिफॉल्ट वैल्यू जेड का मैंने दे दिया है 2। ये एक्स पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी को मैंने एक्स में स्टोर करा दिया, वाई को मैंने आर में स्टोर करा दिया, जेड को मैंने टी में स्टोर करा दिया और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने ले लिया है 0। अब देखते हैं, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, कैल एसआई। ये क्या करता है, बस एसआई को कैलकुलेट करता है, जो भी एसआई का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, और जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा उसको एसआई की वैल्यू रिटर्न करता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया कैल एसआई, जिसका काम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और रिटर्न करना, और यहाँ पे एक मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है एसआई, जो कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स लेता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में मैंने एक्स वाई और जेड में तीन डिफरेंट वैल्यूज मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। हम फिर से रिवाइज करें डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे काम करेगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर दीजिए। अगर यूजर यहाँ पे जो तीन डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सप्लाई किए हैं उसकी वैल्यू अगर यूजर प्रोवाइड कर देता है तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉल नहीं होंगे, और अगर वो सप्लाई नहीं करता है उस कंडीशन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉल होते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में पहला फंक्शन मैंने लिख दिया CLR स्क्रीन क्लियर करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एसआई टाइप का, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ऑब्जेक्ट 1 में मैंने तीन वैल्यू प्रोवाइड किए हैं 10,000, 4 एंड 1। क्योंकि मैंने तीनों वैल्यू प्रोवाइड कर दिए हैं, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो वैल्यू है 10,000 वो कहाँ स्टोर होगा, एक्स में स्टोर होगा। 4 कहाँ स्टोर होगा, 4 सीधा स्टोर हो जाएगा वाई में, और 1 कहाँ स्टोर होगा, 1 विल बी स्टोर इन जेड। मतलब एक्स की वैल्यू होगी 10,000, वाई की वैल्यू होगी 4 एंड जेड की वैल्यू होगी 1। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा है सी आउट ऑब्जेक्ट 1 डॉट कैल एसआई। मतलब ऑब्जेक्ट 1 में का जो फंक्शन है उस पे कैल एसआई को आप एग्जीक्यूट कराइए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पी की वैल्यू है 10,000, आर की वैल्यू है 4 और टाइम की वैल्यू है 1 जो हमने प्रोवाइड किया है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। आउटपुट हमको मिलना चाहिए यहाँ पे 400। हम आउटपुट देखेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, लेकिन अभी देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ है आउटपुट आया यहाँ पे 400। अब सेकंड लाइन ऑफ कोड देखिए, सेकंड लाइन ऑफ कोड देखिए एसआई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू प्रोवाइड किए हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने देखिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे मैंने तीन पैरामीटर डिफाइन किए थे, लेकिन जब मैं फंक्शन को कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, उस समय मैं सिर्फ दो ही पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ 10,000 एंड 4। तीसरा पैरामीटर मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। जब हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं उस कंडीशन में ये प्रोग्राम आपका कोई भी एरर नहीं देगा। यहाँ पे अब क्या होने वाला है, 10,000 विल बी स्टोर्ड इन एक्स, 4 will be stored in y, and we have not provided any value for z. Since I have not provided any value for z, by default this value z is equal to 2 that we have declared at the time of default argument declaration, z is equal to 2 will be provided, this one. So the value of p is 10,000, value of r is 4 and the value of t is 2, that is default। यहाँ पे हमने टाइम को प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू टाइम का है z इज इक्वल टू 2 हमने लिखा है डिक्लेरेशन के समय, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन के समय, वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 10,000 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, इसका आउटपुट आएगा 800। ओके,
अब देखिए तीसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। एस आई ऑब्जेक्ट 3 मैंने दिया है 10,000। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू सप्लाई किया है, इसका मतलब साफ है ये 10,000 कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब चूंकि मैंने वाई और जेड का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने वाई और जेड का वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है, तो क्या होने वाला है, वाई इज इक्वल टू 5 और जेड इज इक्वल टू 2, ये यूज होगा और पी में असाइन होगा 10,000, आर में असाइन होगा 5 और टी में असाइन होगा 2। इसलिए यहाँ पे देखिए आउटपुट मैंने लिखा हुआ है 10,000 जो हमने सप्लाई किया है, 5 डिफॉल्ट वैल्यू है, 2 डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1000। अब सबसे लास्ट केस, मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एस आई ऑब्जेक्ट 4। इस लाइन पे देखिए एस आई ऑब्जेक्ट 4, इस लाइन पे देखने से ये समझ में आता है कि हमने कोई भी वैल्यू सप्लाई नहीं किया है। जब मैं कोई भी वैल्यू सप्लाई नहीं किया हूँ इस कंडीशन में, ये पूरा तीनों डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट्स हैं वो यूज होगा। पी में स्टोर हो जाएगा 1000, आर में स्टोर हो जाएगा 5 और जेड टी में स्टोर हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे ये काम कर रहा है 1000 इंटू 5 इंटू 2, तो आपका आउटपुट आएगा 100। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। इसका मतलब अगर आप वैल्यू सप्लाई करते हो तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज नहीं होगा, अगर आप वैल्यू सप्लाई नहीं करोगे तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट सप्लाई होता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहे थे। जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी देखिए कि मैंने लिख दिया एस आई ऑब्जेक्ट, इस प्रोग्राम में हम देखें एस आई ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू 10,004। ऑब्जेक्ट 1 में 3 वैल्यू पास कर दिए 10,004 एंड 1। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वैल्यू, मतलब ये वैल्यू फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब है एट द रन टाइम हमको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अभी तक हमने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन देखा, अब हम देखते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप किसी भी प्रोग्राम को डायनेमिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब रन टाइम पे आपको वैल्यू प्रोवाइड कराना है। इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेडर फाइल, एक सेम प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है एस आई वैल्यू पी टी फ्लोट आर एस आई पब्लिक। यहाँ पे फिर से डिफॉल्ट वैल्यू बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो पिछले स्लाइड में आपने देखा था, सेम प्रोग्राम है, बस मेन फंक्शन मैंने चेंज किया है। मेन फंक्शन इसलिए चेंज किया है कि आपको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसके लिए डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए मैं मेन फंक्शन में लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट। 3 लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम एंड रेट। फिर मैं यूजर को बोलता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। ये रन टाइम पे काम करेगा, इसी को बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। रन टाइम पे हम अब यूजर से पूछ रहे हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। अब यूजर ने जो भी इनपुट किया उसको आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट वेरिएबल में स्टोर करा दोगे, रेट में स्टोर करा दोगे और टाइम में स्टोर करा दोगे। मतलब रन टाइम में आपके पास 3 डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब आप उस 3 डिफरेंट वैल्यू, जो वैल्यू अपने प्रिंसिपल, एम्प्टी वेरिएबल, टाइम वेरिएबल और रेट वेरिएबल में स्टोर किया था, उसको उसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉल कर लीजिए। दैट्स इट। यहाँ पे एस आई ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने, पास किया प्रिंसिपल अमाउंट को, फिर पास किया रेट को, फिर टाइम को। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो यूजर ने स्टोर किया वो कहाँ जाएगा, एक्स में। फिर जो रेट जो यूजर ने इनपुट किया वो कहाँ जाएगा, वाई में। और टाइम जो यूजर ने इनपुट किया वो कहाँ जाएगा, जेड में। अब ये एक्स है वो कहाँ स्टोर होगा, पी में। वाई कहाँ स्टोर होगा, आर में। और जेड कहाँ स्टोर होगा, टी में। तो ये हमने देखा। फिर सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराने के लिए मेन फंक्शन में वापस आते हैं। मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कैल एस आई। तो पी में जो पी और टी में जो यूजर ने इनपुट रन टाइम पे दिया था उस ऑब्जेक्ट के, उसके थ्रू आपने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया और आपको आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है इनिशियलाइज एट रन टाइम। कंपाइल टाइम में हमको इनिशियलाइज नहीं करना है, हमको पहले से वैल्यू नहीं पता है। रन टाइम में यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, अब इसका आउटपुट देखिए, इंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। यूजर ने इनपुट किया 10,000, 6 एंड 3। अब इसको P इंटू आर इंटू डी डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपीज। ओके, सो दिस इज प्रोग्राम फॉर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो ये अभी तक हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है,
कंस्ट्रक्टर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को समझने के लिए फिर से हम बिल्ट इन टाइप पे जाते हैं। जैसा कि बिल्ट इन टाइप डिफाइन होता है, बिल्ट इन टाइप डिफाइन करने के बाद उसको किसी, जैसे मान लीजिए मेन फंक्शन के अंदर हमने उसको डिफाइन किया, जैसे ही वो, जैसे मान लीजिए मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर x इज इक्वल टू 5। अब जैसे ही मेन फंक्शन का स्कोप खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल जो x हमने क्रिएट किया था वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बिल्ट इन जो टाइप्स हैं उसकी फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ने हमें एक यूजर डिफाइंड टाइप दिया है क्लास। अब क्लास जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है डिस्ट्रक्टर। सो डिस्ट्रक्टर एज द नेम इम्प्लाइज इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अभी तक, जो भी हमने देखा कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उसको डिलीट करने का काम करता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होता है। जैसा कि कंस्ट्रक्टर में होता है नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड द नेम ऑफ द क्लास इज सेम, सिमिलरली नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर एंड नेम ऑफ द क्लास इज ऑल्सो सेम, बट द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज प्रिसीडेड विथ टिल्ड साइन। जो डिस्ट्रक्टर का जो नाम है वो टिल्ड साइन से स्टार्टिंग होता है। एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लास एबीसी, एक क्लास क्रिएट किया, उसका डिस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होगा, ये टिल्ड साइन के साथ क्लास का नाम ब्रैकेट। डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, ना ही कोई उसको आर्गुमेंट रिटर्न करता है। तो फिर से रिवाइज करें, जैसे कि नॉर्मल बिल्ट इन वेरिएबल जब आउट ऑफ स्कोप होता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी प्रकार क्लास वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, उस मेंबर फंक्शन को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। जैसा कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, वैसे डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम जैसा होगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। अब हम डिस्ट्रक्टर को इस प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने डिफाइन किया है एक ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। ये ग्लोबल वेरिएबल है जिसको मैंने डिफाइन किया है, इनिशियलाइज किया है 0 से। क्लास डिफाइन किया एबीसी। एबीसी के पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। एबीसी के पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर हमको दिख रहा है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है काउंट प्लस प्लस। जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो काउंट की वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी प्लस प्लस से, और स्क्रीन पे प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और काउंट की जो करंट वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट करेगी स्क्रीन पे। ये कोड, लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे एक डिफाइन किया है डिस्ट्रक्टर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं नेम क्लास के नेम के जैसा ही है, और यहाँ पे इसको टिल्ड साइन यहाँ पे हमने लगाया हुआ है इसको, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के अंदर भी बिल्कुल सिंपल 2 लाइन का कोड मैंने लिखा हुआ है। सी आउट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, और जो काउंट की करंट वैल्यू है वो स्क्रीन पे आपको प्रिंट करके दिखाएगा। उसके बाद मैंने एक लाइन ऑफ कोड ये भी लिखा है काउंट माइनस माइनस, जो भी काउंट की जो वैल्यू है वो उसको माइनस माइनस कर देता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्लास में एक ग्लोबल वेरिएबल काउंट जो ये बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर एक कंस्ट्रक्टर, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब देखते हैं कि कैसे कॉल करेगा। सबसे पहले आते हैं मेन में, फिर सी आउट इनसाइड मेन, मतलब हम क्या स्क्रीन पे प्रिंट करने वाला है, इनसाइड मेन। यहाँ पे देखिए क्या काउंट करे प्रिंट होगा, इनसाइड मेन। सबसे पहला लाइन जो स्क्रीन पे दिखेगा आप दिखना चाहिए वो है इनसाइड मेन। फिर हमने क्या किया, एबीसी ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हुआ, मतलब क्या होने वाला है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट 1 होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद लाइन ऑफ कोड देखिए, काउंट प्लस प्लस, काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू थी 0, अब क्या हो गई 1, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 1। ये आउटपुट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से याद रखें, इसको हम मैच करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 1 जैसे ही कॉल हुआ काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1 से, स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। फिर जो सेकंड ऑब्जेक्ट कॉल होगा, यहाँ से देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 है, जब ये कॉल होगा तो फिर से इस कंस्ट्रक्टर पे आप आ जाओगे।
अब काउंट की वैल्यू कितनी है, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो काउंट की वैल्यू थी 1, अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब जब काउंट की वैल्यू हो गई 2 तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड काउंट, मतलब 2, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 2। ठीक है। जो तीसरा है वो है ऑब्जेक्ट 3। जैसा ही ऑब्जेक्ट 3 पे आप आओगे तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब काउंट की वैल्यू कितनी है 3, फिर क्या प्रिंट करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 3। तो मतलब हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर चुका है इनसाइड मेन, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 1, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 2, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 3, ये स्क्रीन पे प्रिंट किया है। उसके बाद अब देखते हैं ये वाला एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। ये नया ब्लॉक एक स्टार्ट हुआ, ब्लॉक ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर क्या प्रिंट करेगा, इंटर ब्लॉक 1। अब प्रिंट किया इंटर ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 के अंदर आ गए। फिर यहाँ पे मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 4। जैसा ही मैं ऑब्जेक्ट 4 क्रिएट करूंगा फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, अब काउंट की वैल्यू है 4 और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जो देखनी है वो है यहाँ पे स्कोप खत्म हो रहा है। तो जैसा बिल्ट इन टाइप स्कोप खत्म होने पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होता है, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट 4 है वो क्लास टाइप का वेरिएबल है। तो क्लास टाइप के वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने ही डिस्ट्रक्टर कॉल किया था, डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया था। तो जैसे ही ये स्कोप मतलब जो कर्ली ब्रेस है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस एग्जीक्यूट करेगा, ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना चाहिए, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हाट इज द काउंट। जब ऑब्जेक्ट 4 क्रिएट हुआ था तो काउंट 4 था, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड 4। फिर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट माइनस माइनस मतलब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद फिर से हम एक नए ब्लॉक के अंदर आ गए, नए ब्लॉक के अंदर आए, प्रिंट किया इंटर ब्लॉक 2। फिर मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 3 हुई थी, फिर से यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 4। यहाँ पे जैसे ये स्कोप खत्म हुआ फिर से डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा और ये डिस्ट्रक्टर काउंट को फिर से कम कर देगा। फिर आप मेन के अंदर आ गए, मेन के अंदर आने के बाद लास्ट में फिर जब मेन की स्कोप से आप बाहर जाते हो तो ये जो तीनों ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 हुए हैं, वो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो तीनों ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जो रियल टाइम आउटपुट जब इस प्रोग्राम को मैंने रन कराया तो देखें कि क्या आया आउटपुट, देखते हैं। ये हमको आउटपुट मिला है, इनसाइड मेन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 1, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 2, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 3, इंटर ब्लॉक 1, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 4, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड 4, इंटर ब्लॉक 2। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रिंट किया इनसाइड मेन, ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट 1 2 3 तीनों हुआ, तो ये लाइन ऑफ कोड, तीनों लाइन ऑफ कोड, ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर आप ब्लॉक 1 के अंदर आ गए तो यहाँ पे एंटर ब्लॉक 1 प्रिंट हुआ है। फिर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 4, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 4 हुआ। और जब आप स्कोप से आप बाहर आ रहे हैं, जो ये ऑब्जेक्ट करेंटली डिक्लेयर हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। फिर आप ब्लॉक 2 के अंदर आए तो ब्लॉक 2 के अंदर आप आ गए। उसके बाद फिर आपने फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर आप स्कोप छोड़ रहे हैं, स्कोप से बाहर आ रहे हैं, मतलब फिर से डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। उसके बाद आप मेन में आ रहे हैं तो यहाँ री इंटर मेन लिखाया। फिर मेन की स्कोप से बाहर जा रहे हैं, मतलब जो इन लास्टली जो स्टार्टिंग में हमने जो 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ बारी बारी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सबसे पहले तीसरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, फिर पहला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। इस तरीके से ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन काम करता है, जैसा कि हमने देखा। तो ये हमने देखा कि बेसिक आउटलाइन डिस्ट्रक्टर के बारे में, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये किस तरीके से कॉल होता है, कॉलिंग का सीक्वेंस क्या होता है, हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी स्कोप खत्म होता है डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है। जब भी कंपाइलर से जब भी कंपाइलर ब्लॉक से एग्जिट करेगा, फंक्शन से एग्जिट करेगा, प्रोग्राम से एग्जिट करेगा, जो भी कंस्ट्रक्टर ने स्टोरेज क्रिएट किया है उसको क्लीन अप करने के लिए इम्प्लिसिटली कॉल होता है। आपको अलग से उसको कॉल करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कंस्ट्रक्टर न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके मेमोरी एलोकेट करता है, डिस्ट्रक्टर डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करके उसके मेमोरी को फ्री करता है। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। कंस्ट्रक्टर कभी भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और जब भी कंस्ट्रक्टर न्यू ऑपरेटर यूज़ करता है, आपको डिस्ट्रक्टर में डिलीट ऑपरेटर से उस मेमोरी को फ्री करना पड़ता है जो कंस्ट्रक्टर ने न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था। इससे रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कुछ क्वेरी है तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर किया था, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।